so this is session 10, guys. I have seen all your work of previous tasks जो आप सबने किया था regarding food photography. So I've seen all those tasks and I've liked your work, and I've also uh, explained you everything regarding food photography last class में, and उसके बाद आप लोगों ने जो भी लिमिटेड सिनेरियो में जितना पुल ऑफ कर सकते थे आपने वो किया, एंड आई रियली लाइक योर वर्क. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क ऑलरेडी, एंड जिन्होंने नहीं किया वो दे आर सेइंग दैट दे विल सबमिट इट वेरी सून. सो आई वुड लाइक टू सी द वर्क जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया. आई एम होपिंग कि आज की जो वीडियोस मैंने शेयर की थी, टुडेज टॉपिक इज नेचर फोटोग्राफी. So I have shared a few videos with you. दो वीडियोस थी. I'm hoping कि वो वीडियोस आपने देख ली होंगी. So I'm just unmuting one of you so that I can actually hear someone's voice, that if you can hear me properly. जी फायदा, I have unmuted you. मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. Just mute your mic once when I ask you for something. Yes, sir. उस वक्त आप अनम्यूट कर लीजिएगा जब मैं कुछ पूछूं तो. फिलहाल आप म्यूट कर लें. Okay, sir. So I was saying that today's topic was basically nature photography. So I have given 2 videos on the ग्रुप, और वो वीडियोस जो है बेसिकली एक वीडियो थी एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो फोटोग्राफी. ठीक है. द सेकेंड वीडियो वाज ऑन हाउ टू डू नेचर फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी विद सेल फोन. तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें DSLR कैमरा यूज हो रहा है. ऑब्वियसली उसकी पूरी साइंस एक्सप्लेन की है उसमें कि वो किस तरीके से आप बाय यूजिंग DSLR कैमरा एंड स्पेशल लेंसेज होते हैं मैक्रो फोटोग्राफी के. They're very expensive lenses, by the way. So वो lenses किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी focal length क्या होती है, depth of field क्या होती है, everything that has been explained in that video. But obviously I don't suggest you all to spend a lot of money in buying macro photography lenses. They're very expensive, and especially DSLR is also something which you all don't have it at home, so I wouldn't suggest for that. So but the idea of sharing that video was to actually explain you the science of macro photography and its separate new world. किस तरीके से उसमें काम होता है वो explain करने के लिए आपको बताया. अच्छा, तो second video जो थी वो थी that was on basically how to do macro photography with your cell phone camera. So I'm sharing my screen again with you all so that you can see. जी can you see my screen? फायदा जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. So एक वीडियो ये थी मैक्रो फोटोग्राफी की जो मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. एंड द सेकेंड वीडियो वॉज दिस, जो ये DSLR से पूरी मैक्रो फोटोग्राफी का एक्सप्लेनेशन है. तो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो जो सेल फोन से ली हुई है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट वो वीडियो आप सबने देखी. ठीक है. यस अहमद, वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल टेक योर क्वेश्चन. सो वो वीडियोस आप सबने देखी है. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट उसके अंदर सेल फोन से टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं टू डू मैक्रो फोटोग्राफी. फॉर दैट यू नीड अ गुड सेल फोन, स्मार्ट सेल फोन जिसका बिल्ट इन एक कैमरा होता है, प्लस उसने एड ऑन लगाया, मैक्रो लेंस का क्लिप लगाया, जो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह होता है. लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम हमाद. जी हमाद, प्लीज. Ahmad Mughal. Yes, Ahmad, you can speak. Ahmad, do you want to ask anything?
So now the thing is that पहले मैं आपके साथ टास्क शेयर कर लेता हूँ कि आज का टास्क क्या है, so that I can explain things accordingly. So I'm sharing my screen with you all again, and I hope if you can see my screen right now. Okay. So this is the assignment 9, which is today's task, and it's based on nature photography. So I've clearly explained in this that you have to submit me 20 best photos. Each student would submit me 20 best photos. For that 20 best photos, you might have take 30 pictures, or जितनी भी pictures आप लो, मुझे 20 best submit करनी है आपने, ठीक है? And especially make sure that you're capturing all these images in daylight. The reason I'm saying this कि nature photography daylight में ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, because the type of nature photography which we are planning to capture is close-ups. हमें wide angle shots नहीं चाहिए इतने ज़्यादा कि जिसमें पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, आसमान भी है, पूरी सीनरी नज़र आ रही है. वो लैंडस्केप्स होते हैं बेसिकली. वो एक और जॉनरा है, सिनिक फोटोग्राफी कहलाता है वो. तो हम थोड़ा सा नेचर के अंदर मैक्रो, थोड़ा सा क्लोजअप्स को फोकस करना चाह रहे हैं इस टास्क में. तो आप लोगों ने प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, बुशेस, ग्रास, फ्लावर्स, पोलन, सॉइल, स्काई यू कैन टेक पिक्चर ऑफ स्काई. ऑब्वियसली स्काई का क्लोजअप तो नहीं होगा, वो वाइड एंगल शॉट होगा. इफ़ यू लकी इनफ कि जब आप कैप्चर कर रहे हो तो अच्छे क्लाउड्स हो, इंटरेस्टिंग क्लाउड्स का कुछ टेक्सचर हो. प्लेन स्काई वुडंट मेक एनी सेंस कि उसकी पिक्चर ले लिया और लिया. तो फिर वाटर का टेक्सचर हो गया क्लोजअप. एनिमल्स, अगर पेट एनिमल्स हैं आपके घर में या आसपास, उनके क्लोजअप्स हो गए. सच एज आपकी बैल्कनी में कबूतर आ जाते हैं, या कौवे हों, या आसपास कैट्स हों, डॉग्स हों, और दूसरे बर्ड्स आपको कहीं नज़र आ रहे हों आसपास, तो यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ दैट. सो the tips which you have to follow for this task is that all photos should be in daylight and with cell phone camera or DSLR. ये choice रखी है मैंने, but obviously I would appreciate if you taking pictures with cell phone camera, because मैंने जो videos share किए आपके साथ, they're more based on जो second वाली video, it's about cell phone camera, and I want you to explore that part of the cell phone in nature photography especially. तो DSLR से भी करना चाहते हैं तो भी कर लें, कोई इशू नहीं. पिक्चर जो है मेक श्योर करें कलर्ड हो. ऑब्वियसली नेचर शूट है तो कलर्ड पिक्चर्स ही चाहिए होती ज़्यादातर. एंड पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो. पोर्ट्रेट मीन्स अगर पिक्चर आप ऐसे लेते हो फ़ोन से तो दिस इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन. आप ऐसे लेते हो तो दिस इज लैंडस्केप ओरिएंटेशन. तो आप पोर्ट्रेट लो या लैंडस्केप लो, दैट्स टोटली योर चॉइस. इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कॉम्पोजिशन क्या था. हमने उस कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप शॉट्स ले सकते हो, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट. द सेकेंड पॉइंट सेज which this is the point which I always add in my tasks, because ये टास्क आपको बहुत पहले कराया था मैंने, and I'm hoping कि आप ये सब फॉलो करते रहोगे throughout your life in photography, whether I say it or not say it. मेरे साथ कोर्स हो या आपकी वैसे ही फोटोग्राफी प्लान की भी हो आप लोगों ने, कैजुअली भी फोटोग्राफी करो, तो भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आपने. The thing is, these principles, basic principles of photography, which I have also taught you already, they are rule of thirds, active and dead space, leading lines, contrast, frame within a frame, fill the frame, and superior inferior angle. ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, मतलब ये जहन में होना चाहिए आपके while composing your shots for nature. So camera settings for DSLR, obviously मैंने एक yes, Hamad Mughal, yeah, I'll take your question in a while. So कैमरा सेटिंग मैंने एक नॉर्मल कैमरा सेटिंग्स रखी हुई है, लिखी हुई है इधर DSLR के लिए. बट ऑब्वियसली आपकी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ जाए. तो ये ज़रूरी नहीं कि यही सेटिंग्स फॉलो करें, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं एज पर योर इन्वायरमेंट एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड एक्सपोजर. सेल फोन के लिए कैमरा सेटिंग मैंने सबसे पहले आपको बताइए, क्लास स्टार्ट हुई थी जब फेस टू फेस क्लासेस ले रहे थे हम,
तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3:4 का रेशियो सब लोग अपने कैमरास पे, फ़ोन कैमरास के ऊपर मेक श्योर करें 3:4 का रेशियो ऑन हो, एंड रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड ऑन हो, सो दैट यू कैन कंपोज योर पिक्चर्स वेल विद दैट। एंड 3:4 के रेशियो पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है सेल फोन कैमराज में, उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, सो योर पिक्चर्स वुड बी वेरी शार्प, क्लियर, क्रिस्प, और उसके ऊपर काम किया जा सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में। एंड मेक श्योर दैट ऑलवेज टेक पिक्चर्स व्हेन यू यूजिंग सेल फोन, रेयर कैमरा यूज करें, डू नॉट यूज फ्रंट कैमरा, बिकॉज रेयर कैमराज resolution is better than the front. Yeah. Last, fourth point is try taking clear shots, close-ups of nature. Try avoiding man-made structures. This is very important. Try avoiding man-made structures because nature photography है, तो कोशिश करें कि nature ज़्यादा नजर आए इसके अंदर, ठीक है? Then and also it's not just man-made structures. आपको humans भी avoid करने हैं. अब डिबेट एक है कि भाई ह्यूमंस भी नेचर का पार्ट है, या दैट्स फाइन, बट वो एक जॉनर ऑफ फोटोग्राफी अलग है ह्यूमंस। वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर एज अ जॉनर ऑफ फोटोग्राफी, स्पेशली क्लोजअप्स एंड मैक्रोस, उसमें ह्यूमंस का कोई काम नहीं है, राइट? सो ट्राई अवॉइडिंग ह्यूमंस, ट्राई अवॉइडिंग मैन मेड स्ट्रक्चर्स इन योर पिक्चर्स। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड लास्ट इज पोस्ट ट्रीट योर इमेजेस ऑन ACR कैमरा रो में मैंने आपको बेसिक फंक्शन सिखाए हैं, लाइक टचिंग योर पिक्चर्स, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, शैडोज, डार्कनेस, ये सारी चीज़ें। क्लैरिटी का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर फोटोग्राफी में। यू कैन इंक्रीज, यू शुड इंक्रीज योर क्लैरिटी। आप अपनी शार्पनेस पिक्चर्स की इंक्रीज करें कैमरा रॉ में, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली द टास्क, हाउ यू सबमिट इट, लेबल करके एंड ऑल। So this is the task I explained you on. Now I'll take question. Let's Mohammad Hamad Mughal. Yes, please. जी Hamad Mughal, you want to ask something? जी वाल साहब, थोड़ा सा जोर से बोले या माइक करीब करें। सलाम सर। वाल साहब जी बोले। भाई जो अभी आज का असाइनमेंट है इम्पॉसिबल है सर। कौन सा सर? जी जो अभी आपने नीचे का असाइनमेंट दिया सर। जी घर पे बैठे बैठे असाइनमेंट नहीं हो पाता सर। आपने लास्ट टाइम फोटोग्राफी का दिया था, वो तो हो गया था, लेकिन सर ये नीचे का असाइनमेंट घर वाले बाहर निकलने देते नहीं है, तो बिल्कुल पिक्चर्स वगैरह ले नहीं सकते सर ऐसे तो। अच्छा राइट, आपके मैं पॉइंट समझ गया हूँ। अभी मेरी टास्क के ऊपर जो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ वो चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, और वंस वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको समझ आएगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर 5-6 पिक्चर्स होती तो फिर भी समझ आता, आप 20 पिक्चर्स बोल रहे हैं तो इम्पॉसिबल ही लगा है वैसे देखा जाए तो। और डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स अलग अलग लेनी पड़ेंगी, डिफरेंट पिक्चर्स ही लेनी पड़ेंगी। अब मैं अपने घर से अगर एक व्यू देखता हूँ तो एक ही व्यू आएगा, आप एक ही व्यू में 20 पिक्चर्स में नहीं शो कर सकता सर। ये भी तो देखें ना आप, ये अगर मैं 11th फ्लोर पे रहता हूँ, ये एक ही बेलकनी है, तो वहाँ से मैं सिर्फ एक ही व्यू आपको शो कर सकता हूँ, वो सिर्फ 20 पिक्चर्स में वो तो शो नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, वहाँ से जो आप पिक्चर लोगे वाइड एंगल होगी, वो तो लेनी ही नहीं ना। हम तो बोल रहे हैं कि आपको करीब जाना है, सच एज आपके घर में प्लांट है तो यू हैव टू गो क्लोज टू दैट प्लांट, समझ रहे हो बात? कैट है तो यू हैव टू गो क्लोज टू दैट। आई एम नॉट सेइंग वाइड एंगल शॉट तो लेना ही नहीं है। अभी मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया सेशन, आपने कंप्लेन पहले शुरू कर दिया। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी शो यू सम इमेजेस, सम वर्क ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड माय पर्सनल वर्क। प्लस इस टास्क को मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया अभी ठीक से, ठीक है? सो होल्ड ऑन टू योर कंसर्न, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस। जब ये क्लियर हो जाए फिर आपको समझ आएगा कि आप पुल ऑफ कर सकते हैं या नहीं। क्लियर हुई है बात? ओके, सो मूविंग ऑन टू द टास्क। यस, सो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है गाइस कि टास्क है क्या। Now let me show you a couple of pictures of my students from different campuses, and then you will understand more about this work. But before I go into that, let's just discuss the video जो हमने देखी है, especially the one जिसमें cell phone से macro photography की है। So the tips for that is, वो सारी tips उस वीडियो में दी थी, ठीक है? One more important thing he was doing was he was using an app which is called Snapseed.
स्नैपसीड के नाम से एक ऐप है, वो बेसिकली फोटो एडिटिंग के लिए अच्छी है सेल फोन पे. एंड नॉट ओनली स्नैपसीड, देयर आर अदर एप्स एज वेल, सच एज लाइटरूम की भी ऐप है सेल फोन पे. और इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं सेल फोन में, तो एडिटिंग के लिए एंड ऑल. सो यू कैन एक्चुअली यूज दोज एप्स एज वेल. एंड इसके अलावा टिप्स ये होती हैं कि यू विल हैव टू बेसिकली होल्ड योर फोन स्टिल. आपने देखा होगा उस वीडियो में अक्सर जगह पर उसको क्लियर शॉट नहीं मिल रहा था, एंड बिकॉज द हैंड ऑफ ह्यूमन इज कॉन्स्टेंटली शेकिंग, सो यू डोंट वांट दैट. So for that you have to actually put your phone's camera onto a timer. ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फ़ोन से जब पिक्चर लो तो आप टाइमर पे 3 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स टाइमर पे फ़ोन को रख देते हो, तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअल मोमेंट. जब आपका कैमरा रेडी है पिक्चर लेने के लिए, तो आप उस वक्त आप रेडी हो जाते हो जब वो टाइमर एंड होने वाला होता है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रेथ एंड देन आप थोड़े स्टिल हो जाते हो एज कम्पेयर टू ये विदाउट टाइमर. क्योंकि विदाउट टाइमर लोगे, आप जब स्क्रीन पे क्लिक करोगे पिक्चर लेने के लिए या बटन से साइड बटन से पिक्चर लोगे, तो भी एक स्लाइट जर्क आता है फ़ोन के अंदर. वो जर्क भी रजिस्टर हो जाता है, स्पेशली क्लोजअप्स में, मैक्रो फोटोग्राफी में. वाइड एंगल में तो वो जर्क रजिस्टर नहीं होता, वो कैमरा इतना एफिशिएंट होता है सेल फोन का, बट क्लोजअप्स में हो जाता है. सो इट्स बेटर इफ यू यूज टाइमर एंड पिक्चर लेते वक्त और बी वेरी स्टिल. अच्छा, ये तो उसमें टिप्स थी, ठीक है. नाउ लेटर एडिटिंग आप फोटोशॉप पे करें कुछ तस्वीरें एंड ACR पे कैमरा रो पे जिस तरह मैंने सिखाई. एंड आई दिस टाइम इन दिस पर्टिकुलर टास्क आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली edit some of the pictures on cell phone camera apps such as Snapseed, such as Lightroom, या such as your built-in camera का भी एक editing app होता है. अक्सर फ़ोन में होता है. जो भी कैमरा आपके पास है, फ़ोन है, उसके अपना कैमरा का एक एडिटिंग ऐप होता है. आप उसमें एडिट करें, आप स्नैपसीड में करें, लाइटरूम, और इनके अलावा भी कोई और ऐप है जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं, करें. सो दिस टाइम आई वुड लाइक यू टू पोस्ट पिक्चर्स. तो उसमें कुछ पिक्चर्स आपने सेलफोन पे एडिट की हुई हो, तो साथ में कमेंट में या कैप्शन में मेंशन करना है ये सेलफोन पे एडिट हुई है. और जो पिक्चर्स ACR में एडिट हुई है उनके साथ मेंशन कर देना है ACR में एडिट हुई है. So I wanted to explore both. The reason is that Adobe Camera Raw is not always with you, right? You need to have a laptop. आपको अपनी फ़ोन से पिक्चर्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं वाया USB केबल onto your laptop. So that is a lengthy process, obviously. But जो photographers perfections होते हैं, काम अच्छा चाहते हैं अपना, they do that, right? But let's say if you're in a remote environment and you don't have your laptop and you want to take pictures of nature, close-ups, macros, instantly आपका plan है to post them on social media such as Insta and Facebook and all. तो उस सूरत में आपका cell phone is the better tool to edit your pictures on cell phone, right? So you should know how to operate those. So I want to ask you guys to explore the cell phone camera editing apps, cell phone photo editing apps as well. Right, so I'm going to move on to the work of my students first. Previous students जिन्होंने nature पे काम किया है. So I'm going to share my screen. Let me know if you can see my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Good. ठीक है. अच्छा, this is the work of my Ahan University students basically, and I teach photography there as well. So I'm going to show you their work first. फिर Ikra University के past batches के जो students हैं उनका काम भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर अपना काम भी दिखाऊंगा. So basically these guys are जो AKU के students हैं, they are basically medical students, but इनको मैं photography भी सिखाता हूँ और they're very different genres of photography की लोग करते हैं, but they're very good at nature photography. The reason is because somehow they're connected to nature and they're going to be doctors in future. Nature photography पे इनका सबसे ज़्यादा interest होता है. Now I would like to tell you most of these pictures are taken through cell phone camera.
later edited on Adobe Camera Raw. सबको ही इन्होंने Adobe Camera Raw पे edit किया है, सेल फोन उस पे नहीं किया, apps के ऊपर edit. So I'll show you some of the work. Let's say this picture, right? So focus on the clarity of the image, right? It's very clear image. Okay? Because you see, this guy is so lucky to get this shot. Snail है, इतना सा होता है, like, so you have to move your camera close to the for close-ups. Nature photography में close-ups इस तरह के लेने होते हैं. See, this is a tiny insect, लेकिन उसका कितना अच्छा shot आया. And this is taken through cell phone. No macro lens, no DSLR. फिर सब कैमरा रॉ में इन्होंने एडिट किया. I love this kind of shot जिसमें दरख्त होता है, पूरी ब्रांचेस उसकी नजर आती हैं. Sky is your actual background, subject is tree, branches, bark, leaves उसके, और ये बीच में से जो नेगेटिव स्पेसेस बन रही होती हैं. इट्स एन अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट. मेरे पर्सनल फेवरेट शॉट्स हैं ये. मैं खुद भी इस तरह के शॉट्स खुद लेता हूँ. This is a close-up of a leaf. See, the texture is such clear in this picture. बहुत क्लैरिटी है टेक्सचर की. ऑब्वियसली क्लैरिटी इसने एडोब कैमरा रॉ पे भी इंक्रीज की हुई है काफ़ी, आपको नज़र भी आ रहा होगा. शार्पनेस इंक्रीज की हुई है. These kind of shots are very nice, you know. Sky, और वो भी sky, if you're lucky enough to get a texture cloud वाला sky like this, and you know, corner right left bottom of the frame, say tree diagonal composition में, you know, it's coming out of the bottom of the frame. This looks very interesting, you know. And the entire frame, if you see, it's like asymmetric, half and half balance उसका asymmetric है, and it's somewhat reaching the rule of third grit जो palm tree है वहाँ तक पहुँच रहा है, you know, just coinciding that point. So, you know, such as this picture now, this is tiny bee, right? So the student was very lucky enough to capture such a shot. फिर कुछ क्रॉपिंग भी होती है. अब जरूरी नहीं ये फ्रेम, ये पिक्चर इतना दूर से लिया हुआ है, मतलब इतना करीब जाके लिया है, वो क्रॉपिंग भी कर सकते हो आप बाद में. Such as this shot. This type of shots you can, you know, capture on sunset or, you know, at that time. लेकिन cloud texture, sky texture हो इस तरह का तो it looks very nice. फिर obviously इसमें treatment हुई हुई है पिक्चर पे. This shot such as this one. This is a very nice angle actually. Remember in one class we discussed angles, उसके अंदर हमने superior angle और inferior angle discuss किया था. So जो face to face sessions है हमारे, so उसी क्लास में I also explained you कि there are multiple more angles, like bird eye view होता है over the top. फिर एक ये जो एंगल है ये एंट्स व्यू है, वॉर्म्स व्यू भी कहलाता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जब आप पिक्चर लेते हो. यू जस्ट कीप योर सेल फोन कैमरा ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल क्लोज अप ग्राउंड के ऊपर रख दो कैमरे को, सो यू कैन गेट सच अ शॉट. टाइनी आई से जो शॉट निकलता है. दिस फॉर एग्जाम्पल this. So there's a lot of work they've done on, you know, nature photography. Again, he got so lucky to capture this squirrel because squirrels are very fast in moving. But this is highly touched up on Photoshop, right? So सामने जो इसके क्या कहते हैं ये flowers and their colorful पीछे उसने डल किया है basically select करके उस एरिया को. तो ये एक्चुअली इस तरह का होना था इमेज. So you see minimum man-made structures in these pictures. in man-made structure नहीं नजर आ रहे. सही है. एक ये फोल्डर था, एक और बैच था, उसका भी काम करा रहे हैं. Now this is framed basically. ये जो वर्क है इनका ये basically exhibit होता है. So this is the reason why it's framed. Then it's printed like this.
So it's class of 2023. Again, this is Worms view wala shot. This is how I like the composition, you know, it's very diagonal. This is sunset, most probably golden hour. Again, such vibrance is very important when you're touching nature photography. Adobe Camera में vibrance increase करने का option है, you should do that. See, this is such a colorful image. This close up of a tree park, you know. You can see a lot of texture. It's kind of a new world. ऐसे लगती है macro photography. So there's a lot of work. See the butterfly. This is again grass पे जो ground level का shot. The guy got so lucky with the expressions of cat. Now it is not necessarily nature में आप जो है चीज़ों को as is लें, आप अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं. For example, this kid actually इसने पिक्चर लेते वक्त ये फ्लावर को एक्चुअली ग्राउंड पे रखा है यहाँ पे कहीं से उठा के, बिकॉज ही वांटेड अ कॉम्पोजिशन ऑफ हिज ओन. तो ये प्लानिंग भी आप कर सकते हो व्हाइल यू नो डूइंग नेचर फोटोग्राफी. आई रियली लव द डायगोनल डायनामिक डिवीजन ऑफ द फ्रेम, एंटायर फ्रेम. यू नो ये लीफ की जो सेंट्रल लाइन है ये पूरा डिवाइड कर रही है द फ्रेम इनटू लीडिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें. And the contrast of red and green. See the branches. There are a lot of images. Okay. These are the close-ups basically. So they've taken from this kind of pictures. They've taken through a macro lens attachment on a phone, which I will show you in a while. Now it is not necessary to capture trees. So this kit plan to capture shadows of trees, you know. ये भी this is his thought process हो सकता है ये भी. Very interesting shot. You know. Superior angle obviously, as I explained you earlier, and tree की bark का close up है. Leading lines, see, very interesting. So you can apply all these principles in nature photography as well. See it's a bit asymmetric shot, right? And center जो है थोड़ा सा off हुआ है इसका, and थोड़ा सा it's moving closer to the rule of third grid, and these lines are actually leading you inside the frame. तो बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो सकते हैं नेचर फोटोग्राफी. Okay, so this was some work by my AKU. Now I will show you the work of my previous batch of ICRA University students, nature photography. So this is the work of my previous batches at ICRA University. Now look at the composition, right? Like subject जो cat है उसको they treated as a, you know, as main center of attention, जिसको लग रहा है कि properly बोला गया था कि आप बैठो यहाँ पे we taking a portrait. This is an amazing shot. थोड़ा सा off centered है, asymmetric है. This amazing contrast. Very lucky to get such a texture on the sky, clouds का. I love the division of the frame. Center से divided into two parts. Asymmetric composition है. Left part उसने tree को रखा है, right part sky को रखा है. कितना surrealistic look आ रहा है इस picture में. Lucky enough to get such expressions. See the contrast.
This is a very nice shot taken at sea view. Again, fill the frame concept. You fill the entire frame with the cat's face. Very nice imagery. They got very lucky with the animals actually. And this is some of the pictures one of the students took in a pet show. वो इसने pet show वाली pictures submit किया. See, I really love the droplets on the flowers and trees. It's so clear and crisp. Especially this one. See, texture of the leaf कितना crisp है. Obviously treat किया हुआ है उसको. So the reason I'm showing you all these pictures is to give you an idea what you can do actually. It is not necessary that you are taking exactly similar pictures. Obviously it's locked down, you can't go outside. I understand. Okay, this is it. So before I move forward and show you my work, I would like to take questions. Yes, anybody want to ask anything so far which is confusing or want to comment on the work of students I've showed you? Saeed Uzaif Ali. Saeed Uzaif Ali, yes please. What do you have to say? मुझे असाइनमेंट आप जो दोबारा से समझा दें शुरू से, क्योंकि लॉगिन में एरर हो रहा था, एरर आ रहा था तो लॉगिन कर नहीं सका था. श्योर, मैं असाइनमेंट वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ. बाय दी जो ये पूरा सेशन खत्म कर दूँ फिर असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर सबके लिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक. अच्छा, सो where were we? So I'm going to show you some of my work now, which I have done in the genre of nature photography. And I have divided my portfolio to show you in two parts. एक वो है जो मैंने DSLR से nature photography की है, which I'm going to show you first. और एक वो है जो cell phone से की है. Then I'm going to do the cell phone ones later. Now most of these images are not edited, but ये शुरू की दो pictures edited है. This one is edited and this one is edited. बस ये दो edited. अब यहाँ से onwards जो आप देख रहे हैं, these are not edited images. These are some of the images I have taken through DSLR. This is close-up shot of wheat. गंदम का जो है उसका बिल्कुल इतनी टाइनी सी होती है ये गंदम. I don't know if you've seen these shots earlier. I've shown it in class. I don't remember. This is basically, I tried an Astro. It's basically Rakaposhi mountain, but I wasn't lucky that night. It was moonlight. So, you know, such shot when the sunlight falls, जो leaves है उनको उनके through जब sunlight आती है तो वो glow ही अलग होता है leaves का. That is very interesting. You know, कुछ जगह light green है, bright है, कुछ dark greens है. You know, it creates a variation. Such shots of animals. Now from here onwards, the shots you will see in wildlife photography. This is where I went to one of the international zoo. It's based in United Arab Emirates. Al Ain is a city. वहाँ Al Ain zoo है basically. So that zoo is very photographer friendly. You can take pictures, and your pictures looks like you were actually into the wildlife. लगता नहीं है वो zoo pictures लो आप तब तो. So they've created instead of cages, they have this see-through glasses जिसके through आप picture ले सकते हो. And lens obviously इतना powerful होता है वो glass के through pass कर जाता है and it looks very nice.
when you've done taking those pictures. This is all taken in Alejandro, the wildlife photography. These are not edited images. I still did not get time to edit them. Yeah. Okay, so these are some of the DSLR shots I've taken. Now I will show you my cell phone camera shots जो nature से related है, and I will also show you the macro attachment. Okay, this is one of the shots. As I explained you earlier कि मुझे ये style बहुत पसंद है, tree branches, leaves and sky as a background and these negative spaces, Now this is one of the in one of my demo I was giving to school students like photography nature के ऊपर, so that I was giving them an idea कि आप खुद अपनी composition भी बना सकते हो, by actually placing all the pictures leaves as a design. आप ये खुद भी कर सकते हो. I was explaining them once. These are some of the, ये बिल्कुल ground level पे आके आपने picture ली. Again the sky is sunny and goes sunlight pass कर रही है इसमें से. This is edited image I took. These are all cell phone pictures. So you can see the leading lines, जो electric wires हैं. I got lucky with the texture on the sky cloud का. And this pole is actually coming out from the right bottom side of the corner of the frame. Perfect corner से वो निकाल इस तरह से it's popping out into the frame. And this is actually this was my intention, find an unusual frame. Again here my intention was to divide the entire frame into two parts diagonally. So diagonally I had to move my phone camera to take pictures in such a way. So it's not basically you don't take pictures as is, you move around with your camera to take your desired composition. Such shots where sky is the background and the plant is, or the trees, they are the subject. Like unusual compositions. I love the branches and इनका जो design बनता है ना pictures में, perspective बनता है, कुछ thick है, कुछ thin है, कुछ दूर है, कुछ करीब है, without leaves. So these are all cell phone pictures. Now from here onwards, these are the macro lens attachments. So I will show you macro lens attachments. Yeah. So I'll show you the cell phone camera clip as well. That how you use this macro clip on your cell phone camera. The one that guy was showing in the video. आप वो भी यूज कर सकते हो. तो बेसिकली दिस इज अ क्लिप, मैक्रो लेंस का क्लिप मेरे फोन पे लगा हुआ है, उससे पिक्चर लिए मैं. It's all cell phone camera photography. अब this is not a macro lens. कुछ जो क्लोजअप से उसकी बात हो रही है. This is also a macro lens. This flower is this tiny. इतना सा होगा ये. So again timer on करके picture लेनी है. Now this is blur. I have taken multiple shots ना. उसमें से कोई एक clear हो जाता है, such as this or maybe this. Again ये wheat जो होता है गंदम, उसका close-up है. This is close-up taken by cell phone. And cell phone macro lens attachment plus cell phone के अंदर जो expert mode है, pro mode, उससे. Because in pro mode you can control a lot of things.
Anyways, these are some of the pictures I wanted to show you. And now as people, someone wanted कि मैं assignment वापस explain कर दूँ. I will explain the assignment again and I will then tell you how you can manage this within lockdown. Plus I have to show you the attachment of macro lens on top of my cell phone camera. So I'll share my screen and I'll explain you the assignments again because बहुत लोगों ने late join किया. Okay, so as you can see my screen, right? So assignment 9, basically you have to submit me 20 best photos, ठीक है, जिसके अंदर daylight में pictures होनी चाहिए, capturing close-ups of plants, trees, bushes, grass, flowers, pollen, soil, sky, water, animals, birds, जो भी आपको अवेलेबल हो नज़र आए उसकी पिक्चर्स लेनी है. क्लोजअप शॉट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव शोन यू लॉट ऑफ इमेजेस ऑफ माई पास्ट स्टूडेंट्स वर्क भी दिखाया मैंने, अपने भी कुछ काम दिखाए हैं क्लोजअप्स के. So you have to take such images. Now the interesting thing is that it is not necessary to take all the pictures for this assignment right now. If you've taken any pictures in past which falls into the same category, इसी genre में fall होती हैं and you think that assignment का जो task है उसको fulfill करती हैं past की जो pictures हैं. For example, the same leniency, same idea I also floated in the food photography assignment. इसमें भी मैं वही सेम आपको चीज़ अलाउ करता हूँ. इफ़ यू हैव पिक्चर्स इन पास्ट जो आपने ली हैं विच फॉल्स ऑन टू द सेम टास्क, तो आप वो पिक्चर्स भी सबमिट कर सकते हैं. बट आपने कोशिश ये करनी है कि वो पिक्चर्स सबमिट तो करें, बट यू हैव टू एक्चुअली एटलीस्ट एडिट देम either on Adobe Camera or on cell phone camera apps. किसी न किसी चीज़ में आप एडिट ज़रूर करें उन पिक्चर्स को. तो एडिट करके वो पिक्चर्स अपलोड करें. तो कुछ पिक्चर्स अभी ले लें. फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लांट इन योर बैल्कनी और देयर इज यू हैव अ सपोज यू हैव अ गार्डन बैकयार्ड इन योर हाउस और वहाँ पर कुछ पौधे उगे हुए हैं या कैट्स हों आपके पास, परिंदे आते हों, कबूतर आते हों. यू कैन टेक पिक्चर ऑफ एनी ऑफ दोज थिंग्स विच बिलोंग्स इन नेचर. तो वो आपने 20 बेस्ट में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. योर प्रीवियस पिक्चर्स, योर न्यू पिक्चर्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इनटू दिस कैटेगरी नेचर के अंदर, ठीक है, जिसमें कोशिश ज़्यादा हो कि क्लोजअप्स हों चीज़ों के. अच्छा, फिर सारी डे लाइट में हो एंड कैन बी टेकन थ्रू सेल फोन एंड DSLR बोथ. और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सच एज रूल ऑफ थर्ड, एक्टिव डेड फेस, लीडिंग लाइन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हों आपकी कॉम्पोजिशन में. DSLR की बेसिक कैमरा सेटिंग्स मैंने लिख दी हैं, सेल फोन की बेसिक कैमरा सेटिंग्स मैंने लिख दी हैं. ट्राई टेकिंग इन अ प्रो मोड. सेल फोन के अंदर जो प्रो मोड है, जिस तरह फूड फोटोग्राफी आप लोगों ने की है प्रो मोड से, यू नो. क्लियर शॉट्स लो. मैन मेड स्ट्रक्चर्स नेचर फोटोग्राफी में अवॉइड करने हैं आपने. ह्यूमंस को भी अवॉइड करना है और मैन मेड स्ट्रक्चर्स को भी अवॉइड करना है पिक्चर्स में. फ्रेम के अंदर ना आए कोई इस तरह की चीज़ कोशिश करनी. देन पोस्ट रीड इमेजेस ऑन कैमरा रो एज टॉट. उसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल शार्पनेस है, क्लैरिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, वाइब्रेंस है, सैचुरेशन है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करो नेचर फोटोग्राफी में. इट लुक नाइस, या जो मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं आप लोगों को भी. देन अगेन सबमिशन का वही क्राइटेरिया, सब पता है आपको किस तरह सबमिट करना है. दिस इज इट. नाउ आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द असाइनमेंट. फिर उसके बाद आई विल प्रोसीड टू द मैक्रो लेंस अटैचमेंट. इफ देयर आर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट, कंफ्यूजन हो, असाइनमेंट क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. एनीबडी if you want to ask anything, raise your hand. Nobody? फायदा जी. फायदा सर मैं ये पूछना था, ये पिक्चर किस तरह एडिट करनी है, फोन पे या फिर लैपटॉप पे, और कौन से से ऐसे.
अच्छा देखिए, आप फोन पे एडिट करें तो भी इट्स एक्सेप्टेबल। जैसे वो वीडियो देखिए आपने, स्नैपसीड पे एडिट हो रही थी, ठीक है, तो स्नैपसीड आपके पास ऐप इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर कर लें, या लाइटरूम की ऐप है, लाइटरूम की बेस्ट ऐप बाय द वे, कैमरा के अपने फ़ोन में लाइटरूम ऐप इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर एडिट कर लें, सही। या फिर आप लाइटरूम और स्नैपसीड के अलावा कोई और ऐप एक्सप्लोर करना चाहती है। देखिए ये टास्क ऐसा नहीं है कि यही करना है और ये नहीं करना है, ये ऐसा नहीं है टास्क, ये फोटोग्राफी है और नेचर है। आप, मैं चाहता हूँ एक्सप्लोरेशन करें, आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को एक्सप्लोर करें और ऐप की फोटोग्राफी जो ऐप के अंदर एडिट हो रही है उसको भी अपलोड करें अपने असाइनमेंट्स में। और जब ऐप में अगर एडिट की हुई है तो लिख दें एटलीस्ट कमेंट में या कैप्शन में कि ये ऐप पे, फलानी ऐप पे आपने अपलोड किया और क्या एडिट किया। और अगर आप कैमरा रॉ में एडिट कर रहे हैं तो मैं इंकरेज करूंगा कि कुछ तस्वीरें कैमरा रॉ में एडिट करें फोटोशॉप पे, कुछ तस्वीरें सेलफोन ऐप में एडिट करें। समझिए बात? यस सर। सर हमने कुछ और पूछना था सर। हमने लास्ट टाइम जो पिक्चर क्यों लेट हो गई थी तो सर आप बता सकते हैं कि कैसे चलेगा, हम काम सही कर रहे हैं? फायदा, आपका आवाज जो है ना बहुत डिले आ रहा है, आई कैन नॉट हेयर यू प्रॉपर्ली। कैन यू राइट योर क्वेश्चन इंस्टेड? प्लीज लिख दें आप अपना क्वेश्चन, मैं ऑडियो में आंसर कर दूंगा। ओके सर। अच्छा जी, मोहम्मद हमाद मुगल जी, हमाद जी प्लीज बोले। सर फाइनल में क्या होगा? किसमें क्या होगा? फाइनल में। फाइनल में? जी फाइनल का डिस्कशन नहीं किया बेटा आपने। उसके पहले मैं ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के शेयर करूंगा, वो आप लोग डॉक्यूमेंट देख लोगे, आप लोग समझ लोगे, डिस्कशन कर लोगे, फिर किसी एक सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे कि उसको किस फाइनल ऑनलाइन होंगे? देखो हमारा सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल नहीं है ना बेटा, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो ऑब्वियसली इसमें पोर्टफोलियो सबमिशन है फाइनल प्रोजेक्ट जो है आपका। वो पोर्टफोलियो सबमिशन कैसे होगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके सर। ठीक है ना, कोई थ्योरी थोड़ी होगा इसके अंदर। अच्छा, तो ओके, सो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ले लिया। नाउ आई विल शो यू कि मैक्रो लेंस की अटैचमेंट है, ये क्लिप है मेरे पास, राइट? इट्स बेसिकली यू कैन माउंट दिस क्लिप ऑन टॉप ऑफ अ सेल फोन कैमरा। ये क्लिप ऐसे माउंट हो जाता है। अच्छा, तो बिफोर माउंटिंग दिस क्लिप मेक श्योर इफ यू हैव अ प्रोटेक्टिव बैक कवर या ये सिलिकॉन कवर जो होते हैं सेल फोन के, इसको उतार दे, बिकॉज अगर ये ऑन रहेगा इसके ऊपर क्लिप माउंट करेंगे, ये परफेक्टली इसके साथ क्लोज नहीं होगा लेंस के साथ। So it's basically to take off these silicone back covers, and once you take off this, always before taking pictures from your cell phone camera, do clean the lens with a tissue or a cloth. हमेशा इसको साफ करें क्योंकि छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स भी इस पे आ जाते हैं, so that creates a problem in taking picture. G. Leroy, yeah, you want to ask something? Leroy, is there anything you want to ask? यस सर, आवाज़ आ रही है? जी जी बोले। सर मैं ये बोल रहा था कि जिसके पास ऑलरेडी एक फ़ोन हो माइक्रो लेंस के साथ, वो क्या करे? वो तो बेस्ट है। आपके पास अगर माइक्रो लेंस के साथ फोन है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू। आई डोंट नो इफ वी डिस्कस दिस ऑलरेडी इन फेस टू फेस सेशन। मैंने एक दिन, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे याद दिलाओ अगर मैंने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि माइक्रो लेंस की अटैचमेंट्स होती हैं सेल फोन के ऊपर लगती है। सर आपने बोला था कि अगर इफ यू हैव अ फोन विद अ माइक्रो लेंस, so you don't need to buy an external micro lens for it. अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके फोन में मैक्रो लेंस का बिल्ट इन ऑप्शन है मैक्रो का, I have no idea which phone are you using and उसके अंदर किस तरीके से बिल्ट इन मैक्रो लेंस है, बट मैक्रो लेंस का जो एक्चुअल फंक्शन है वो तभी फुलफिल होता है जब आप उसको टॉप पे माउंट करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास फोन के अंदर जो कैमरा की ऐप है विच यू यूजिंग पार्ट ऑफ योर फोन, उसके अंदर बिल्ट इन कोई डिजिटल इस तरह का ऑप्शन होगा जो मैक्रो लेंस का इफेक्ट क्रिएट करता होगा आपके फोन की स्क्रीन पे। इफ आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ।
आजकल वो उसका ज़्यादा चल रहा है ना, Redmi Note 8 Pro। तो अभी मैंने वही फोन परचेज किया, तो 64 मेगापिक्सल कैमरा, तो उसमें उन्होंने माइक्रो लेंस दिया है, pretty awesome। Very nice. So I have no idea about that phone, but if you have a built-in macro lens, obviously you don't need to buy any attachment for your cell phone camera. That's perfect. And obviously DSLR के macro lenses are very expensive. Start ही cheapest lens 1.5 लाख से start होता है macro lens. So you don't want to spend money for DSLR macro lenses when you have ये पूरी किट जो है, मेरे पास किट है मैक्रो लेंस, ये लेंसेज की, ठीक है। इसमें 3 लेंस है, एक मैक्रो है, एक वाइड एंगल है मेरे पास, और एक फिश आई है। ये पूरी किट मैंने ली थी 2500 की, विच इज़ वेरी चीप, यू नो। सो यू कैन बाय दिस इवन नाउ, अभी भी आप ले सकते हो। यू डोंट, आई नो इट्स लॉकडाउन एंड ऑल, यू कांट गो आउट, बट दराज से या ऑनलाइन जितने भी हैं उधर से आप आराम से इसको खरीद सकते हो। ये क्या कहते हैं, ये जो क्लिप्स आते हैं इसके। जी वकार, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जी प्लीज। जी सर खरीदने के लिए नहीं, but just for asking, चीप ऑल्टरनेटिव भी तो होता है ना सर, जैसे जो जूम लेंस होते हैं उनको इन्वर्ट करके रिवर्स रिंग्स लगा के जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, I know, but that's very technical. Not everybody can understand and implement that. Yes sir, क्योंकि वो रिंग्स तो 1500-2000 के मिलते हैं, इतने महंगे थोड़ी होता है। हाँ, true, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेसिकली मैक्रो लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो होता है ना। तो बचपन में हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं, साइंस के प्रोजेक्ट्स में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हमें टीचर सिखाते थे कि ये देखो क्लोजअप देखो चीजों का, यू नो। तो यही तो होता है मैक्रो लेंस, और क्या होता है। बट वो इन्वर्ट करने का ऑब्वियसली ऑप्शन है, एंड इट्स अ वेरी चीप ऑप्शन। बट ऑब्वियसली जो चीज एज इज किसी फंक्शन के लिए बनाई जाती है उसको यूज करना आसान होता है। इन्वर्ट करके, माउंट इन्वर्ट करके जो है वो ऑप्शन इज देयर ऑलरेडी, बट इतना उसको एक्सप्लेन करना, उसको लिए टेक्निकलिटी समझना जरूरी है आपके लिए ना। तो हर किसी को समझ नहीं आती। अब ये क्या है, 2500 का आपने ले लिया है, पूरा सेट है इसके अंदर। इट हैज फिश आई लेंस, इट हैज मैक्रो लेंस, इट हैज वाइड एंगल लेंस, और जूम लेंस भी सेलफोन्स के आ गए हैं, आपको पता है। तो ये बड़े इजीली चीप मिल जाते हैं अभी तो दराज जरूरी नहीं है, किसी भी वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी भी आपके ऑर्डर करेंगे, आपके घर में होम डिलीवर हो जाएगा। जब खाना होम डिलीवर हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आई एम अज्यूमिंग वकार बात हो गई हमारी, समझ आ गया? यस सर, यस सर, यस। ओके, सो दिस इज अ मैक्रो लेंस। इसके ऊपर मैं छोटा सा लेंस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये माउंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, क्लिप के ऊपर। ये छोटा सा क्लिप है, इसके ऊपर एक रिंग है। ये रिंग इस तरह का होता है, इसमें चूड़ी होती है बेसिकली, और ये जो है लेंस है एक्चुअली। ये माउंट इसके ऊपर हो जाता है। यू जस्ट फिक्स दिस, इसके ऊपर प्लेस करके आप इसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, ये स्क्रू हो जाता है इसके ऊपर। इट्स सिंपल, ये स्क्रू हो गया। अब मैं इसको स्क्रीन के करीब ला के दिखाता हूँ। इस पर मैक्रो लिखा हुआ भी है, ये आपको मिरर नजर आ रहा होगा इस वक्त मेरी स्क्रीन में, और यू कैन सी ये मैक्रो लिखा हुआ है, राइट। सो ये मैक्रो लेंस क्या करता है, राइट नाउ इफ आई एम showing you my cell phone screen, okay, so you can see me right through my cell phone screen. So if I take my cell phone close to my hand, अब एक टाइम तक वो क्लियर शॉट लेगा यहाँ तक। इससे ज्यादा करीब लेके जाऊंगा तो ब्लर होनी शुरू हो जाएगी चीज, बिकॉज माई सेल फोन लेंस डज नॉट हैज अ मैक्रो लेंस अटैच। बट सी द डिफरेंस इफ आई माउंट दिस ऑन टॉप of my cell phone, ठीक है। If I mount this on top of my cell phone, अब यहाँ से इतना दूर है तो it should be clear, लेकिन since मैंने मैक्रो लेंस माउंट कर दिया तो ये ब्लर हो गया। मैक्रो लेंस रिमूव करूंगा मैं क्लियर हो जाऊंगा, ठीक है। जो ही मैं मैक्रो लेंस माउंट करूंगा इसके ऊपर, now I can glow as close to I can see. You can see my beard hairs properly. You can see my fingerprints properly now. थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा, हाँ। अब जितना भी करीब चले जाओ आपको सब चीज क्लियर नजर आएगी। दिस इज द पावर ऑफ मैक्रो लेंस अटैचमेंट ऑन टॉप ऑफ द सेल फोन कैमरा लेंस।
So you can buy this easily anywhere, order it online. अगर नहीं भी है आपके पास तो it's not necessary कि इस टास्क के लिए आप खरीदें. I'm not forcing anyone to buy this, but as a photographer, it is your interest. तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, because आजकल ऐसा है ना कि सेल फोन फोटोग्राफी is so popular and आपके पास ये सब चीजें हो तो it's like on fingertips you can take pictures, good pictures. जी वकार बोले. सर अगर मैक्रो लेंस नहीं ले रहे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी टिप्स होती हैं कि आपने कैसे अपने लेंस से ही मैक्रो लेना है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं. सेलफोन के लेंस की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम ये नहीं ले रहे एक्सटर्नल लेंस तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी टिप्स बताई होती हैं कि कैसे आपने मैक्रो करना है नहीं करना, नहीं हम कर सकते हैं कोशिश. वो समझ गया मैं तुम्हारा सवाल. मैं कह रहा हूँ मैक्रो सेलफोन की बात कर रहे हो ना, ये मैक्रो सेलफोन और कैमरा दोनों में से सर. हाँ दोनों में से टिप्स है. ऑब्वियसली डीएसएलआर का मैंने तुमने डिस्कस किया कि वो कन्वर्ट कर लो जूम को, ठीक है, माउंट रिंग माउंट लगा के, राइट. और सेलफोन का जो कैमरा है ना, इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती. जब जूं ही आप चीज के करीब जाओगे ये ब्लर कर देगा इमेज. नॉर्मल सेलफोन का जो है, जिस तरह मैंने अभी डेमो दिया, ठीक है. अब जो बात लेरॉय कर रहा है कि उसके कैमरे के साथ सेलफोन के अंदर एक फंक्शन आया है, अब उसके मॉडल को स्टडी कर लेते हैं. वो मुझे लेरॉय तुम अपना मॉडल नंबर ग्रुप पे सेंड कर देना कैमरे का, फोन का. सो उसको स्टडी कर लेते हैं. हो सकता है आप डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेक्स जो बना रहे हैं उनको समझ आ गया कि फोटोग्राफर जो है सेलफोन पे फोटोग्राफी कर रहा है. ये दुनिया को समझ आ गया. अब जो है वो लोग डिफरेंट फंक्शंस डालना शुरू कर रहे हैं. मेकर्स प्रोडक्शन वाले सेलफोन्स के कैमरास में डिफरेंट फंक्शंस डालने शुरू कर रहे हैं. तो अब वो अगर मैक्रो बिल्ट इन सेलफोन के अंदर ऑप्शन आ गया है तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू बाय दिस क्लिप. आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू टू बाय दिस. आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह की चीजें एज ए फोटोग्राफर आपके पास हो तो इट्स वेरी हैंडी फॉर यू. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कैप्चर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड ट्रस्ट मी, मैक्रो फोटोग्राफी इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. आपको एक बार अगर मजा आ जाए ना मैक्रो फोटोग्राफी का, यू वुड नॉट लीव इट इजीली. आपको यू स्टार्ट लविंग इट. मैक्रो इज नॉट अबाउट जस्ट कवरिंग नेचर, इट इज अबाउट कवरिंग एनीथिंग. किसी भी सरफेस का टेक्सचर का क्लोजअप लिया जा सकता है. अभी एक स्टूडेंट था, आई डोंट नो उसका नाम, वो जो कह रहा था कि नहीं सर बाहर नहीं निकल सकते घर से, दिस दैट. तो बेटा घर के अंदर भी बहुत कुछ है मैक्रो फोटोग्राफी या क्लोजअप नेचर का लेने के लिए. ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड एंड यू नो जस्ट बी पैशनेट. कुछ ना कुछ कर लोगे आप. घर के अंदर प्लांट्स हो, बैल्कनी में प्लांट्स हो. आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लांटेशन होगी. और कुछ नहीं तो कहीं फंगस लगा हुआ होगा, कहीं फंगाई होगा बिल्डिंग के अंदर, अपार्टमेंट में कहीं, वो भी तो नेचर है. तो जस्ट दैट यू हैव टू थिंक ऑफ टेक्निक एंड वे आउट. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक पीपल टू डिस्कस के ये असाइनमेंट कैसे पुल ऑफ होगा. फायदा से बात कर लेते हैं, मुझे आप लोगों से भी आइडियाज चाहिए. जी फायदा, यू वांट टू आस्क समथिंग और ऐड समथिंग? यस सर. सर हम कह रहे थे कि हमें लेट सबमिट करवाया असाइनमेंट, दोनों फूड वाला भी और कैंटीन वाला भी. सर जी इट्स ओके. आप लेट सबमिट कर रही हैं, इट्स ओके. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेट सबमिट कर रहे हैं, दैट्स फाइन. बट एटलीस्ट यू गाइस आर वर्किंग. आई लाइक द फैक्ट कि आप लोग पैशनेट हो, काम कर रहे हो. समझ रहे हो बात? यस सर. सर आप बता सकते हैं कि वो कैसा काम है हमारा, मतलब आपको पसंद आ रही है पिक्चर्स या नहीं? जी मुझे पिक्चर्स आ रही हैं. आई एम लाइकिंग योर पिक्चर्स ऑन फेसबुक ग्रुप एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. के कमेंट्स भी आपको मैंने वीएलई पे जो कमेंट्स दिए हैं एक स्टूडेंट को फूड फोटोग्राफी के, आई एम नॉट श्योर यू वर रीडिंग माय कमेंट्स और नॉट. मैं वीएलई पे एक स्टूडेंट का काम देख के उधर कमेंट कर रहा था. ठीक है फायदा? यस सर. जी यस लेरॉय प्लीज स्पीक. आई नीड यू टू स्पीक अप एंड गिव आइडियाज कि ये घर पे कैसे पुल ऑफ करेंगे सारे. कुछ स्टूडेंट्स परेशान थे, आई डोंट रिमेम्बर के द नेम्स. दे वर सर अभी कुछ घर ऐसे होते हैं, लाइक कुछ घरों के लोकेशन ऐसा होता है कि शायद उनकी छत हो या नहीं हो. अब मेरे छत पे ये सीन है कि बिल्डिंग्स है और थोड़ी सी ग्रीनरी भी है, तो आई कैन कवर दैट एज द नेचर. श्योर. बाकी स्काई वगैरह होती है सर, अब क्वारंटीन में तो ये कर सकते हैं. अब स्काई वगैरह वो भी नेचर में आ जाता है, क्लाउड्स आ गई वो नेचर में आ जाता है. अगर तो किसी के छत पे पौधे लगे हुए हैं वो नेचर में आ जाता है. बैल्कनी में हो पौधे, छत पे हो, यू नो
एग्जैक्टली। हाँ, और अगर एक और चीज हो, और अगर मेरी बात सुनो भाई, ये सब लोग जो कह रहे हैं हम क्वारंटीन में घर पे बैठे, भाई ग्रोसरी करने कौन जा रहा है बाहर? है, समवन इज गोइंग आउट, राइट? कोई ना कोई तो बाहर जा रहा है, तो घर में सामान आ रहा है, राइट? तो आप बाहर जा ही रहे हो, तो आपकी बैल्कनी में भी नहीं है पौधा, घर में भी नहीं है, छत पे भी नहीं है, आप जो सड़क पे निकलते हो अपनी स्ट्रीट पे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उधर आसपास, राइट लेफ्ट आपको। सो यू कैन टेक पिक्चर ऑफ दैट एंड ऑब्वियसली बी सेफ, बी प्रोटेक्टिव व्हाइल टेकिंग एनीथिंग। गली मोहल्ले बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर भी तो दरख्त होते हैं ना, तो दरख्त हैं, कैट्स हैं, परिंदे हैं, यू नो, कबूतर को दाना डाल दो, कबूतर आ जाएगा, उसकी पिक्चर ले लो। यू हैव टू थिंक, मतलब इसको आप इसको हैसल मत बनाओ, है ना, इसको हैसल मत बनाओ, इसको देखो क्या क्या चीजें पुल ऑफ कर सकते हो आपको। जी लेवा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? कोई और आइडिया देना चाह रहे हैं? जैसे वो असाइनमेंट का आपको बता रहा था, आई डिडंट सबमिट माय लास्ट 2 असाइनमेंट्स बिकॉज़ यू नो द आई टोल्ड यू अबाउट दैट। या तो वो इस हफ्ते में सारी कर दूंगा, इस हफ्ते अगले हफ्ते तक, अगले क्लास से मैं सारी कर दूंगा। श्योर कोई इशू तो नहीं है सर? नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ऑल आई वांट टू सी इज योर पैशन, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। जी उज़ैफा, you want to add anything? Uzaifa Ali, Saeed Uzaifa Ali सर। जी सर मुझे ये पूछना था कि जो पिक्चर्स हैं सर, अक्सर जो है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे रैंडम क्लिक्स हम नेचर के लेते रहते हैं, कहीं अच्छा लग जाता है कोई भी, तो पुरानी पिक्चर्स आपने वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सर जो उसका इमेज साइज होता है वो MBs में नहीं है, KBs में ओरिजिनल पिक्चर गई, तो सर क्या एडिट करके वो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं? देखिए फिलहाल तो कर सकते हो, फिलहाल तो ऐसी इस वक्त जो लॉकडाउन के सिनेरियो चल रहा है और टर्म के अंदर आपको पता है मैंने भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है अपने कोर्स के अंदर सब चीज़ों में, तो ऑब्वियसली आई वुडंट माइंड इफ यू सबमिट मी दैट एज वेल, बट कोशिश करना कि जैसे 20 इमेजेस है, कम से कम 10 तो खुद लो ना अभी नए वाले, दैट्स ऑल। जी इंशाल्लाह सर, कुछ हाँ ठीक है। मैं जस्ट आपकी अटेम्प्ट देखना चाहता हूँ मैं, और क्या इसी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया। अभी फूड फोटोग्राफी मैंने देखी कितने स्टूडेंट्स की, ठीक है काफी लोगों ने सबमिट नहीं की, जिन्होंने की है उनमें सबका काम बिल्कुल एक्सीलेंट लेवल का नहीं है, बट दैट्स फाइन, आई हैव अप्रिशिएटेड देम एज वेल, क्योंकि मुझे आपके एफर्ट नजर आया, आपका काम नजर आया कि कुछ किया है आपने, यू नो। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आई वांट टू सी योर एफर्ट्स, दैट्स इट। आई एम नॉट looking for a perfect task here, that's what I'm saying. मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप परफेक्ट टास्क करो, परफेक्ट काम करो, बट जो भी है आपके एफर्ट्स हो अच्छा हो, नजर आएगा। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है सर। Anybody else want to ask or add anything, any ideas you want to discuss कि आप लोग किस तरह pull off करोगे? और I want to Jasim, I think you should add something, right? Jasim Malik, what do you say? I think you have good ideas, assignments भी अच्छे होते हैं तुम्हारे. You should add anything. सर कोशिश करेंगे कि अच्छी हो जाए, बिकॉज मैं यहाँ कराची में तो हूँ नहीं अभी, यहाँ पर हूँ मैं भावलपुर में, तो यहाँ पे लोकेशन तो काफी अच्छी है मेरे। हाँ, I understand. भावलपुर is so rich in nature, green and everything. सही से ठीक। मुश्किल हो गई ना सर, वापसी आ रहे थे लेकिन लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद हम यहीं फंस गए। राइट, चलो अच्छी जगह फंस गए हो, एंजॉय करो। जी लेकिन सर दोस्त के यहाँ है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा कि इतने दिन से उनके पास रुके हैं। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, सो आराम, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आराम, आई वुड लाइक यू टू say something because तुम्हारे assignments भी बहुत अच्छे होते हैं। आराम, unmuted, you can speak। आराम कुछ जी बोल। मतलब कुछ करेंगे घर के अंदर भी, जैसे आपके पास घर के अंदर एक आइडिया मिलता है कि आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स अगर आप जो है ना उसका जूम करके लो तो उसका टेक्सचर काइंड ऑफ सेम होता है। वेरी नाइस। लेकिन resemble करता है, so people can use those artificial plants as well. True, very nice idea, very nice Aram. I like your approach. That ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, very nice. Okay, so
राइट। अच्छा, अब और भी स्टूडेंट्स हैं, किसके पास और आइडियाज है? लेट मी सी। हमजा मूसा, यस हमजा मूसा, आई वुड लाइक यू टू ऐड समथिंग। तुम्हारे टास्क भी अच्छे होते हैं, I've seen your work. हमजा मूसा, you would like to add anything? आइडिया ऐड करोगे? वालेकुम। जी सर, इसके हवाले से तो खैर अभी तो काफ़ी चीज़ें, अभी अगर मैं अभी इतनी सारी चीज़ें सुन रहा था बाकी सबकी के घर में रहकर ही जो है वो इस तरह की चीज़, तो घर में एंट्स वगैरह, ठीक है, और लिजर्ड्स, तो ये ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना काफ़ी चीज़ आ सकती हैं। राइट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लोगों के जो लोग घर में हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर हैं और रूम्स के अंदर हैं, तो लोगों की राइट, ठीक है, गुड आइडिया। अच्छा, anyone else want to ask anything or add anything? Otherwise we'll end the session here. अगर किसी को कोई कंसर्न है, कुछ इशू है, कुछ आइडिया ऐड करना है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, otherwise we'll wind up the session, today's session. जी, तो I think this is it then guys. Best of luck with this session. I hope you like the session.